Hello students, a warm good morning to all of you. Dear students, I hope you all are fit and fine. Students, today we will do our English grammar topic, the passive voice. Active and passive. How can we change active into passive? So there are so many rules. This topic is totally based on the rules. So first of all, you must learn the rules, then easily you can change these sentences. Okay, so first, introduction. The passive of an active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the act and adding the past participate of the active verb. जो पैसिव ऑफ एन एक्टिव टेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द वर्ब टू बी इनटू द सेम टेंस कि टेंस वी वॉन्ट चेंज द टेंस इन वॉइस. इन पैसिव हम टेंस चेंज नहीं करेंगे. एंड इन ऑल टेंसेज when we change active into passive, then always use verb third form. The subject of the active verb becomes the agent of passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is preceded by word. Okay, now you can see the example here. My grandfather planted this tree. Now my grandfather is here subject and this tree is here object. So first we will change object change into subject and subject change into object. This tree, and now we will check the tense. Tense is past indefinite, so as a helping verb we will use was and verb. So the tree is singular here, so we will use was here. This tree was, then third form, planted by my ग्रैंडफादर सॉरी. पैसिव वर्ब टेंस किस तरह से आप टेंसेज हैं वो चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव. प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है आपका? प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और एस रहेगा, चेंज इनटू ईजेएमआर थर्ड फॉर्म. जैसे कि ये टेबल है, आप ये टेबल नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक में और लर्न करेंगे इसको. ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स गिवन है. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट. प्रेजेंट में रहेगा सब्जेक्ट ईजेएमआर. ठीक है, फिर ये पास्ट में रहेगा, ये फ्यूचर में रहेगा, ये गोइंग टू, क्योंकि देर आर 12 tenses. So in passive we will change only 8 tenses. Okay, in passive we will change only 8. Now you can see here, to make short answers, जैसे we use the verb to be. जब हम यूज वर्ब करते हैं तो बी की फॉर्म्स क्या होती है? इज एम आर, वॉज वर. फॉर प्रेजेंट पास्ट के लिए अलग अलग हैं. एंड वी यूज द वर्ब हैव, हैज़, हैड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट क्वेश्चंस. सो द पैसिव इज यूज व्हेन द एजेंट, द पर्सन हु डज नोट द एक्शन. जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो अननोन होता है, हम उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो क्लियर नहीं होता है, तो देन वी नीड द पैसिव सेंटेंसेस. नाउ यू कैन सी हियर the passive is used. जैसे कि Jane was shot, we don't know who shot her. The person who does the action is unknown, unimportant. So this church was built in 1815. It means here we don't know who shot. एंड दिस चर्च की, ये चर्च है वो किसने बनवाई? अनइम्पोर्टेंट एजेंट है, हम वी आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस हियर टू द सब्जेक्ट. सो वी नीड द पैसिव सेंटेंसेस टू मेक मोर प्लाइट और फॉर्मल स्टेटमेंट्स. प्लाइट और फॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए भी हमें पैसिव सेंटेंसेज की नीड होती है. द कार हैजंट बीन क्लीन. You haven't cleaned the car. The car hasn't been cleaned. Less polite here, but more polite if we are using the car hasn't been clean. When the action is more important than the agent, as in process, instructions, events, headlines, new items, and advertisements. Now you can take the example, 30 people were killed in the earthquake. 30 people, तो यानी कि न्यूज़ हेडलाइंस हो गई. हमने किसको इम्पोर्टेंस दिया? 30 पीपल्स को. To put emphasis on the agent, the new library will be opened by the queen. ठीक है, तो हमने किसको इम्पोर्टेंस दी? लाइब्रेरी को, ना कि क्वीन की बनाने वाले को. और जो हमारे डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, वो ऑलवेज यूज इन पैसिव सेंटेंसेज में ही यूज होते हैं. अब हम बात करेंगे एज एजेंट. टू से हु डिड द एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमारे सेंटेंस में मेन क्या होता है कि एक्शन कौन कर रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है. रेफर टू द एजेंट, वो सीधा रेफर किसको करता है? एजेंट को. वी यूज द preposition and the name, जैसे कि by preposition हो गई, फिर name, a noun, pronoun. You can see here, we usually only refer to the agent when it gives us some important information which otherwise missing from the sentence. Our house was designed by a famous architect. Here we are not giving the importance famous architect, just we are giving our house. We don't mention the agent if we don't know
हु हैज़ डन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि किसने ये किया और किसके बारे में ये बातें की जा रही है। अगर हमें पता ही नहीं है तो, और कार वो स्टोलन लास्ट नाइट, तो हमें नहीं पता किसने चुराई, बट हमें क्या पता है कि आवर कार हैज़ बीन स्टोलन। If we are not interested in who has done what we are talking about, or it is not important, and that thing is mentioned here, that is, this is not important, so we will use here he has been taken to hospital. What we are interested in, the fact that he has been to hospital and not who has taken him. If it is easy to understand who did something without it being mentioned, तो ये थोड़ा सा हमारा है किस तरह से हमें समझना। लेकिन सिंपली बेटा आपको क्या याद रखना है कि टेंस है, ओनली 8 टेंसेज विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव, तो उनके स्ट्रक्चर्स यू विल लर्न, देन यू विल नो हाउ विल यू चेंज दीज स्ट्रक्चर्स इनटू पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंसेज, देन यू विल चेंज इनटू पैसिव। Active to passive. To change a sentence from the active voice to the passive voice, the object of the active voice sentences become the subject of the passive voice. And we change the main verb of the active voice sentence into the passive voice. The subject of the active voice sentences become the agent of the passive sentence. Now you can see here this टेबल, जैसे कि अगाथा क्रिस्टी रोट दिस बुक, तो किस तरह से आपको चेंज करना है, ये एक टेबल गिवन है। बाय और विद इन पैसिव वॉइस वी यूज एज एजेंट बाय, जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। उसके बाद आता है हमारे डबल ऑब्जेक्ट, कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको आप कैसे चेंज करेंगे। व्हेन वी हैव वर्ब्स दैट टेक 2 ऑब्जेक्ट्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ब्स होती है टेक 2 ऑब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल गिव समबडी समथिंग, by making the indirect animate object the subject of the passive voice sentence. by making the direct, देखो ऑब्जेक्ट रहेंगे 2, तो वो 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, लिविंग थिंग। तो ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे कि रिक गेव मी दिस बुक, मी क्या है, लिविंग थिंग है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दिस बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, मी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, व्हेन यू चेंज इट इनटू सब्जेक्ट देन मी चेंज इनटू आई, देन गेव मी, फिर वही सेम रूल यू विल फॉलो। एंड अगर आप नॉन लिविंग थिंग को पहले ले रहे हो, तो क्योंकि फिर हमारा जो मी वर्ड है वो एज एन ऑब्जेक्ट ही यूज होगा, तो उससे बिफोर आप प्रपोजिशन का यूज करेंगे टू वर्ड। ओके, दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाय रिक, ये ध्यान रखना आपको। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज़ विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिफोर यू विल यूज टू वर्ड। Some of the verbs that take 2 objects are give, tell, send, show, bring, write, offer, pay, etc. When the indirect object is alone after the verb in the passive voice sentences, it needs the prepositions. नाउ यू कैन सी हियर कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये टेबल गिवन है, नोट करेंगे आप, लर्न करेंगे इसको। आई चेंज इनटू मी, यू चेंज इनटू यू, ही हिम शी हर, इट वी अस यू दे एंड देम। ये कुछ वर्ड्स आपके, ठीक है। फिर आपकी एक्सरसाइज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।